Today, the title of my message is The Power of Healing in Giving. आज का जो संदेश का शीर्षक है देने में जो सामर्थ है. The title itself talks about giving. That doesn't mean I'm going to talk about money. देने का मतलब है मैं जो है वो पैसों के विषय में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ. I will bring you such revelation for your life so you will understand what Jesus is talking about. ऐसा प्रकटीकरण लाऊंगा कि तुम समझ जाओगे कि यीशु क्या कहना चाहता है. This morning the Holy Spirit is working in your lives. आज पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा है. And let's get into the Word of God before we get into man. Thank you, Jesus, for everything. धन्यवाद यीशु सब चीजों के लिए. Amen. This morning आज की सुबह we will read two scriptures. One is from New Testament and one is from the Old Testament. हम दो वचन पढ़ेंगे, एक नए करार से होगा, दूसरे जूने करार से. And then we will understand what the Holy Spirit is teaching out of this scriptures. तो इन वचनों के द्वारा हम देखेंगे फिर पवित्र आत्मा हमें क्या सिखा रहे हैं. Okay, let's read Matthew chapter 21, 18 to 22. आइए मत्ती का 21 अध्याय 18 से 22 पढ़ेंगे. Right? Early in the morning, as Jesus was on his way back to the city, he was hungry. Seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, "May you never bear fruit again." Immediately the tree withered. When the disciples saw this, they were amazed. "How did the fig tree wither so quickly?" they asked. Jesus replied, "Truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, 'Go throw yourself into the sea,' and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer." भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उसे कहा, "अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे," और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया. यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, "यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया है?" यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, न तो केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ में से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा. तो जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा. The power of healing in giving. चंगाई की जो शक्ति है देने में. Hallelujah. So we are going to learn about that. In the second scripture in the Old Testament we are going to read. अभी एक और वचन हम पढ़ेंगे जो पुराने करार से है. And remember what we read in Matthew 21, 18 to 22. अभी मत्ती के 21 अध्याय 18 से 22 अब जो हमने पढ़ा उसे याद रखे. It's about the fig tree. वो उस अंजीर के पेड़ के विषय में है. Immediately the tree withered. तुरंत वो पेड़ सूख गया. And they were all amazed. और वो सब आश्चर्यचकित हुए. Amen. Amen. Okay. Jesus cursed the fig tree. यीशु मसीह ने वो झाड़ को शाप दिया. Keep all these things in your mind. ये सारी बातों को अपनी अब याद रखें. Now turn your Bible to Judges chapter 9, 18 to 15. अभी देखो 8 to 15. आइए अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे सब लोग. नाइयों का पुस्तक 9वां अध्याय 8 से 15 पढ़ेंगे. Okay. One day the trees went out to anoint a king for themselves. किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले. Okay. तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर. One day the trees went out to anoint the king. Verse 8 I'm reading. For themselves they said to the olive tree, "Be our king." किसी युग के वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले.
तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर। But the olive tree answered, should I give up my oil, by which both gods and humans are honored, to hold sway over the trees? तब जैतून ने वृक्ष से कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, हाँ। जिसे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदरमन करते हैं, हाँ। वृक्षों के अधिकारी होकर इधर उधर ढोलने को चलूं? Verse 10. Next the tree said to the fig tree, come and be our king. अभी 10वां वचन, तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। But the fig tree replied, should I give up my fruit, so good and sweet, to hold sway over the trees? और तब वृक्ष ने कहा, अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उसे कहा, क्या मैं अपनी मीठेपन को, अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर ढोलने को चलूं? Then the tree said to the vine, come and be our king. फिर वृक्षों ने डाकलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। Okay. Verse 13. But the vine answered, should I give up my wine which cheers both gods and humans, to hold sway over the trees? डाकलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों का अधिकारी को होकर इधर उधर ढोलने को चलूं? Verse 14. 14 वचन, Finally, all the trees said to the thorn bush, come and be our king. तब सब वृक्षों ने झड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। The thorn bush said to the trees, if you really want to anoint me king over you, come and take refuge in my shade. But if not, then let fire come out of the thorn bush and consume the cedars of Lebanon. झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरी अभिषेक सच्चाई से करते हो, आकर मेरी छां में शरण लो, और नहीं तो छड़बेरी में से आग निकलेगी, जिससे लाबनोन के देवदारू की भस्म हो जाएंगे। Okay, we read two scriptures, two chapters in the two portions of the Bible, one in the Old Testament and one in the New Testament. हमने तो बाइबल के दो वचनों को पढ़ा, एक है पुराने करार से और फिर नए करार से। Okay, you hope you understand this. और फिर आशा रखता हूँ कि आप इस बात को समझ गए। If not understanding, open your ears and listen to what I'm going to say. The Holy Spirit will minister to you this morning. तो जो मैं कह रहा हूँ अपने कानों को खोलकर सुन ले। अगर आपको समझ में नहीं है, पवित्र आत्मा तुम्हें समझाएंगे उसे। You know, we read in Matthew, हम मत्ती में पढ़ा, in 21:18 to 22. मत्ती का 18:21 से 22। Hallelujah. That Jesus was walking and he saw a fig tree. हमने देखा कि यीशु मसीह चल रहे थे और झाड़ अंजीर के पेड़ को And it देखा, had lot of leaves. और उसपे बहुत सारे पत्ते थे। Lot of leaves on this fig tree. ये पेड़ पर बहुत सारे पत्ते लगे हुए थे। Seeing this tree, इस झाड़ को देखते हुए Christ walks towards it, the tree, यीशु मसीह उसके पास नजदीक निकट जाता है, and he was looking for the fruits और उस पर वो फल देख रहा था, because Jesus was hungry. क्योंकि यीशु मसीह भूखे थे। When he saw there was no fruits on the fig tree, जब उन्होंने देखा कि वो अंजीर के पेड़ पर कोई फल नहीं, Bible says Jesus cursed it. बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने उस झाड़ को शाप दिया। Jesus cursed the fig tree. यीशु ने वो अंजीर के पेड़ को शाप दिया। He said to the fig tree, उसने अंजीर के पेड़ से कहा, may you never bear fruit again. और उसे कहा कि तू फिर से कभी फल न दे। Hallelujah. This is the one portion that we read. और ये तो हमने एक तुझ पर कभी फल न लगे ये कहा, और ये हमने एक भाग पढ़ा। Hallelujah. Once a son asked his father, Father, I need the bike. एक दिन एक बेटे ने अपने पिता से कहा, पिता मुझे एक बाइक चाहिए। And the father said to son, और पिता ने बेटे से कहा, go and cut your hair. जा तेरा बाल काट कर आ। Hallelujah. हालेलुया। Now what was the response
अभी देखो उसका रिस्पॉन्स कैसा था। of the father when he asked for the bicycle. देखो जब उसने बाइक को मांगा तो उसका उत्तर क्या था? He said, go and cut your hair. जा तेरा बाल काट के आ जा पहले। So this morning many hair will cut it off. अभी आज बहुत सारे लोगों का बहुत बाल काटेंगे आज। Hallelujah. Jesus Christ, our Lord, walking in our midst. हमारे यीशु मसीह जो हमारे प्रभु हुए वो हमारे बीच में चलते Now हैं। Jesus Christ is walking, towards Jerusalem, and he saw the fig tree and he was so hungry. अभी यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे हैं और वहां पे उसने Now- वो अंजीर के पेड़ को देखा और उसे बहुत ही भूख लगी थी। Now think about, second time I believe Jesus is so hungry. Once he was hungry when he was fasting for 40 days. और अभी देखो दूसरी बार हम देखते हैं यीशु को भूख लगते हुए। पहली बार है जब वो 40 दिन की उसने उपवास की थी। And this is the second time we see that he is very hungry when he saw the fig tree. और हम दूसरी बार अब देखते हैं जब उसने अंजीर के पेड़ को देखा उसे भूख लगी। Jesus was hungry means, यीशु भूखे थे उसका मतलब है he wants the fellowship. He wants to fellowship. He don't wants to avoid the fellowshipping with you. यानी वो तुम्हारे साथ में सहभागिता या संगति करना चाहता है। उस संगति को नहीं चाहता कि रुक जाएं। Every Sunday morning, Jesus is hungry to fellowship with you, my friend. Huh? While you're sleeping, he's sitting at your bed. When you will wake up, I want to fellowship with you. हर इतवार को तुम्हारे खटे के पास यीशु मसीह है और वहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि आकर तुम्हें कि मैं बहुत ही भूखा हूं, कब तू आकर मेरे साथ में संगति करेगा। Jesus Christ never avoid the fellowshipping with you. कभी भी यीशु मसीह ने संगति करना तुम्हारे साथ में रुका नहीं। God is waiting to fellowship with you. प्रभु रुके हुए तुम्हारे साथ में संगति रखने God के is लिए। waiting and is so excited to meet you and have fellowship with you. तो प्रभु इतने एक्साइटेड है कि खुश है तुम्हारे साथ में अपनी संगति जोड़ने के But लिए। when he saw the fig tree, he cursed, let no more fig fruit grown on you. लेकिन जब उसने अंजीर के पेड़ को देखा उसे श्राप दिया और कहा कि आज के बाद तुझ पर कोई फल न लगे। My goodness, you need to be serious this morning. आज सुबह को तुम्हें गंभीर रूप से बात को सोचना है। Healing in giving. देने में चंगाई। Something about the walk style of giving, you attract the healing. तो कहीं तो देने हाँ। के द्वारा तुम चंगाई को आकर्षित करते हो। Unless you don't give, you don't receive. जब तक तुम दोगे नहीं तुम वापस नहीं पा The walk सकते। style of giving attracts the healing for your bodies. तुम्हारे देने की जो रीति है या शैली है वही तुम्हारे शरीर को चंगाई के लिए आकर्षित करती है। When you become a platform of giving, you जब- don't attract the curse. देखो जब तुम देने वाले मंच के बन जाते हो तो श्राप के प्रति तुम आकर्षित बिल्कुल नहीं You होते। only attract the blessings of God. केवल प्रभु के आशीषों को आकर्षित करते This हो। fig tree has lot of leaves on it, but no fruit in it. देखो ये अंजीर के पेड़ के ऊपर कितने सारे पत्ते बिल्कुल फल नहीं। You may have lot of names and fames, but you are not bearing the fruit. You are not a platform of giving. लेकिन तुम्हारे नाम और बहुत सारे पद होंगे लेकिन तुम कोई फल नहीं ला रहे हो, बिल्कुल फलवंत नहीं हो। When you become a platform of giving, you don't attract the curse, but you only be a blessing to others. लेकिन जब तुम एक मंच बन जाते हो देने वालों का मंच तब तुम आशीषों को अपने प्रति आकर्षित करते Why? हो। Because you are no more a cursed product, but you are a blessing product. क्योंकि अभी तुम एक श्रापित व्यक्ति नहीं हो लेकिन एक आशीष का पात्र हो। Hallelujah. Nothing can touch you. Nothing can hurt you when you become a platform of giving yourself to God. देखो कोई बात तुम्हें छू नहीं सकती जब तुम परमेश्वर का मंच बन जाते हो, देने वाले का मंच I have बनते come हो। to an understanding of two kinds of trees. देखो मैं इस समझ पे आया हूं कि दो तरीके के वृक्ष हैं। Whenever the water falls, जब भी पानी गिरता one है of the kind of the tree, it absorbs it. एक ऐसा वृक्ष है जो सारे पानी को चूस लेता The है। another kind is like the oil on the leaves, it won't absorb the water.
कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो पत्ते के ऊपर जैसा तेल रहता है, वो कोई पानी को जो है अपने ऊपर नहीं लेता है। Same way, when somebody speaks a curse, इसी रीति से जब कोई भी श्राप बोलता है, when somebody speaks sickness जब कोई बीमारी को बोलता है या घोषित करता on है you, तुम पर, it cannot wet you or touch you because you have a lifestyle of giving and a lifestyle of healing. It has to slip off you and stay fresh. तो वो तुम्हें कुछ छू भी नहीं सकता या कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे जो है वो तुरंत ही जो है वो तेल के समान फिसल जाएगा और तुम हमेशा ताजा रहोगे और अपनी चंगाई को पाते रहोगे। Because you have a lifestyle of giving and a lifestyle of healing. क्योंकि तुम्हारा जो जीवन की शैली है वो देने का है और आशीष पाने Where का, nobody can touch you. जहां कोई तुम्हें छू नहीं सकता। You know why God's grace is on you? जानते हो कि प्रभु का अनुग्रह तुम पर क्यों है? Why you are so victorious person in Jesus Christ? मसीह में तुम एक विजयी व्यक्ति क्यों हो? Because you have a lifestyle of giving and you have a lifestyle of healing. क्योंकि देने का एक जीवन शैली है तुम्हारी और चंगाई तुम्हारे जीवन का एक भाग है। There is a healing in giving. देने में चंगाई है। When you have a lifestyle of giving, जब देने में का तुम्हारा देने का एक जीवन शैली है, you are entering into a platform of healing. तो चंगाई के मंच में तुम प्रवेश कर रहे You हो। will never attract a curse, but you will attract the blessings of God. तो कोई भी श्राप तुम्हारे प्रति आकर्षित नहीं होगा, केवल प्रभु के आशीषें तुम्हारे Come प्रति on. आकर्षित होगी। If anybody is talking negative, you are a fig tree having lot of leaves but no fruit. अगर कोई भी नकारात्मक बातें तुम्हारे बारे में बोल रहा है, लेकिन याद रखो तुम अंजीर के पेड़ हो। When Jesus cursed the fig tree, लेकिन जब यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को शाप दिया, the Bible says it withered away. बाइबल कहता है कि वो सूख गया। There are 3 seasons in which the fig tree produces fruits. देखो अंजीर के पेड़ को फल देने के लिए 3 मौसम लगते हैं। But it was, Bible says, Jesus said it was not a season this time. पवित्र शास्त्र कहता है कि लेकिन वो फल देने का But मौसम भी नहीं था। when Jesus walked up to the fig tree, लेकिन यीशु मसीह जब उस अंजीर के पास गए, but any fig tree with a lot of leaves on it produces fruits. देखो कोई भी अगर अंजीर का पेड़ है जिस पर बहुत सारे पत्ते दिखाई देते, यानी वो फलवंत है, उस पर फल लगे हुए। But this fig tree, लेकिन ये जो अंजीर का पेड़ है, even with a lot of leaves on it, did not bear any fruit. भले उस पर बहुत सारे पत्ते लगे हुए थे, हाँ। फिर भी वो उसके ऊपर कोई फल नहीं था। This fig tree, like another traditional Christian, ये अंजीर का पेड़ वो दूसरा कोई मसीह व्यक्ति के समान है जो पारंपरिक है। there is another traditional Christian, they want the building to open and they expect the Lord to bless them. वो ऐसे पारंपरिक मसीह लोग हैं जो चाहते हैं कि बिल्डिंग खुल जाए, इमारत खुल जाए और वो वहां जाना चाहते And हैं। the Lord wants to bless it. और वो चाहते हैं कि प्रभु उन्हें वहां जाएंगे तो प्रभु उन्हें आशीष But देंगे। no, Jesus cursed it. नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें शाप दिया। Jesus does not come to us only to bless, but to also see what fruits we bear. लेकिन यीशु मसीह हमें केवल आशीष देने नहीं आते, लेकिन आकर देखते हैं कि हम किस रीति का फल देते हैं। God blesses us so that we become fruitful. प्रभु हमें इसीलिए आशीष देते हैं ताकि हम फलवंत बने। Christ is telling us to be fruitful. मसीह हमें कह रहा है कि हम फलवंत बने। Jesus is telling us to have a lifestyle of giving. यीशु मसीह कहता है कि हमारा जो जीवन शैली है वो देने का जीवन होना This है। morning the Lord Jesus is telling you and me, become a channel of blessing. आज सुबह प्रभु तुम्हें और मुझे ये कह रहे हैं कि तुम एक ऐसा जरिया बनो जो आशीष देने वाला जरिया। Become a channel of blessings. आशीष का एक चैनल बन जाओ। Not a receiver of blessings. केवल आशीषों को लेने का Learn to बनो। give out. Learn to give out. Learn to give सीखो out. देना देना
देना, Don't hold on it. कभी पकड़ कर मत रखो। Give, just having the leaves and not bearing the fruit, you're a cursed tree. तो केवल अगर फल है, सॉरी पत्ते हैं और कोई फल नहीं है, तो तुम्हें वो श्रापित झाड़ के वृक्ष के समान हो। Giving is a healthy lifestyle, my friend. देना एक बहुत ही स्वस्थ जीवन शैली है। Hallelujah. If you don't give, यदि तुम नहीं दोगे, you don't receive. तुम्हें वापस नहीं And if you मिलेगा। don't receive, अगर तुम वापस नहीं you know what पाओगे, Jesus said to that fig tree. आप जानते हो कि यीशु मसीह ने वो अंजीर के पेड़ से क्या कहा। Jesus cursed the fig tree. यीशु मसीह ने वो अंजीर के पेड़ को शाप दिया। But it is different in Mark chapter 11, but the meaning is the same. मरकुस के 11 अध्याय में वो अलग है, लेकिन मतलब अर्थ तो वही है। But it says it was not the season. उसमें वहां पर लिखा है कि वो ऋतु नहीं था। Now I want to tell you, fig tree has 3 seasons like early. मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो अंजीर का पेड़ है उसके 3 मौसम होते हैं। End of June, जून के अंत में, early July, या और जुलाई के पहले, end of June and early July. जुलाई के शुरुआत में और जून के अंत होते ही, जून अंत में और जुलाई शुरुआत में, जून के अंत में और जुलाई के शुरुआत में the fruit comes out and stays 1.5 month. तो उसके जो फल निकलते हैं वो 1.5 महीने के लिए रहते हैं। In Jerusalem it comes little earlier because it is cooler. It is called boker. और यरूशलेम में थोड़ी जल्दी से ही वो फल निकल आता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है, तो इसलिए बोकर कहते हैं That is उसे। season number 1. वो पहला मौसम। Season number 2, दूसरा मौसम early April. अप्रैल के शुरुआत में It is called summer kurmos. उसे गर्मी का मौसम कहा जाता है, या कुरमोस। Hallelujah. Actually, it takes longer time to ripe. और वो ज्यादा समय लगता है जो है पकने पकने के लिए, But the flowers have come. लेकिन वो फूल आ गए हैं उस पर। In the August, और अगस्त में it will ripe. वो वहां पे तैयार हो जाता है। This is how it works. इसी रीति से वो काम करता है। Season number 3. तीसरा मौसम, In the winter, called winter bud. ठंडी के मौसम में उसे ठंडी का जो है पुली कहते हैं, या It only starts in the winter about February, March. तो वो जो है ठंडी के मौसम में केवल उसकी शुरुआत होती है, लेकिन इसकी शुरुआत जो फरवरी और मार्च में रहती About है। 8 months in a year, it is fruitful. तो ये 8 महीने के लिए ये जो है झाड़ फलवंत है। Any fig tree that is out of season bearing fruit will have lot of leaves on it. अगर कोई भी झाड़ है, वृक्ष है जो फलवंत है, तो उस पर बहुत सारे फल रहते हैं। Now you understand, it was a season. अभी तुम समझ गए, वो मौसम When you था फल see देने का। lot of leaves on it, जब तुम उस पर बहुत सारे पत्तों को देखते हो, it is fake that is giving fruit. यानी It वो is showing fake that is going to give fruit. वो नकली है, यानी वो ऐसा दिखाता है कि वो बहुत ही फल देने वाला है। अभी There are so many people fakes. बहुत Fake सारे spiritual. They think that you think outside they are praying people, they are fasting people, they speak the word, but तो inside there is no fruit. देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से बहुत ही आत्मिक दिखते हैं, उपवास करने Come वाले on. लोग, प्रार्थना करने वाले लोग दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। Jesus कोई saw फल नहीं। fig leaves, he walked close to it. और यीशु मसीह ने जब वो अंजीर के पत्तों को देखा, उसके निकट वो गए। Many times when people see Jesus, बहुत बार जब लोग यीशु को देखते हैं, they bow down and they said, "Bless me, Lord." वो झुक कर कहने लगे कि प्रभु मुझे आशीष दे। Jesus said, यीशु ने कहा, "I have not come to bless you this time, मैं तुम्हें आशीष देने के लिए इस बार नहीं आया हूँ, but check out what you have done with the blessing which I gave you." लेकिन जांच कर देख जो आशीषें मैंने तुझे दी ही हैं, उसका तूने क्या किया है। What season we are living in? और कैसे मौसम में What हम time we are living in? कौन से समय में अब हम This जी रहे is हैं। not the time to ask Jesus to bless you. This is the time Jesus will tell you, "I gave you the blessing. What you did with that blessing, I have come to check and I'm coming to check." ये समय आशीष को देखने का नहीं, लेकिन यीशु मसीह का जांचने का समय आ गया। प्रभु यीशु कहते कि मैंने जो आशीषें तुझे दी हैं, वो आशीषों को लेकर तूने क्या किया है, अपने आप को जांच। Last time I blessed you with my anointing.
पिछली बार तुम्हें अभिषेक देकर मैंने आशीष दी थी। Last time I blessed you with the gift of prophecies. पिछले बार मैंने भविष्यवाणी का वरदान देकर तुझे Last आशीष दी। time I blessed you with the gift of healing. चंगाई का वरदान देकर मैंने तुम्हें पिछली Last बार time I आशीष दी। blessed you with the finances. पिछली बार मैं तुम्हें पैसे देकर मैंने आशीष Last दी थी। time I blessed you with the job. पिछली बार मैंने तुम्हें नौकरी दी थी। Last time I blessed you with all the blessings. पिछली बार मैंने तुझे सारी आशीषें देकर आशीष दी थी। I blessed you. मैंने तुझे आशीषित किया। Have you made any fruitfulness of that? क्या उसके साथ तूने कुछ फल लाए? Now Jesus is saying, I will come to check you. अभी यीशु कहते हैं कि मैं तुझे जांचने आया हूँ। My brother, my sister, we need to become fruitful and we need to give out. मेरा भाई मेरी बहन, हमें फलवंत होना है और हमारे अंदर से हमें हाँ। देने वाले बनने That हैं। is where we live a life of healing. तो वही है, वो अच्छे स्वस्थ का जीवन हम जीते हैं। In this tree ये पेड़ में did not had anything. Jesus is actually telling us we must have a lifestyle of giving. देखो, ये जो झाड़ था उसके ऊपर कुछ भी फल नहीं था। यानी यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं, हमारा जो जीने का जो शैली है वो देने वाला जीवन होना In चाहिए। this time of pandemic, ये महामारी के समय में when you turn to medical science, जब तुम मेडिकल साइंस में, विज्ञान में जाते हो, lot of sicknesses. बहुत सारे बीमारी, The doctor will tell you lot of sicknesses. डॉक्टर तुम्हें बहुत सारे बीमारी के They विषय में will only बोलेंगे। talk about side effects. वो केवल उसके साइड इफेक्ट बोलेंगे। But if you can have a natural use of your body, lot of sickness will come out. तो बहुत ही नेचुरल यूज करेंगे अपने शरीर का, तो बहुत सारे जो है बीमारियां निकल जाएंगी। You know, when so many people they come and tell me, बहुत लोग हैं जो मुझे कहते हैं, you know, doctor said to us, डॉक्टर ने हमें कहा after your marriage you will become all right. शादी करने के बाद तुम ठीक हो जाओगे, After you get a kids, you will be all right. बच्चा पैदा होने के बाद अभी Many problems will be solved. तुम्हारे बहुत सारे समस्याएं निकल Yes, जाएंगी। that's not a joke. That is serious. That is truth. हाँ, ये मजाक नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। What the doctor mean? He said it. और डॉक्टर ने जो कहा वो यानी वो जो कहता है वो सही What भी the है। medical science is talking about it. मेडिकल साइंस क्या कहता है? The body is designed to live a healthy lifestyle. तो ये जो शरीर जो है वो एक सेहतमंद या स्वस्थ जीवन जीने के लिए रचाया गया है। Only if a body is able to give away certain things. वो कब होगा? जब शरीर के कुछ चीजों को हम छोड़ देंगे। Similarly, our mind is designed to live a healthy life. उसी रीति से हमारा जो मन है वो ऐसे प्रभु ने बनाया कि हम एक स्वस्थ जीवन जिए। Only if can give away. तो अगर यदि हम दे सकते हैं तो ही Our spirit can be healthy हमारा आत्मा भी स्वस्थ रह सकता है। only if it allowed to contribute to others in a meaningful way. तभी होगा जब हम दूसरों के साथ में एक अर्थ रूप से जो है हम उनके प्रति हम देने वाले बन जाए। Body is contribute designed to give away. हमारा जो शरीर है इसीलिए ऐसा ही बनाया है कि Our हम mind देते is रहें। designed to give away. हमारा मन इस रीति से आकार दिया गया है कि Our हम देने वाले spirit बने। is designed to give away. हमारे आत्मा को ऐसा आकार दिया है कि हम देने वाले बने। But many of us good looking, और बहुत सारे लोग जो अच्छे दिखते हैं but they are stinking Christians. लेकिन वो Stinking सड़ने Christians. वाले जैसे मसीह लोग हैं। Why they are stinking Christians? क्यों वो सड़ने वाले मसीह हैं? Because they do not allow God to give out through us, through you. क्योंकि तुम्हारे द्वारा जो प्रभु देना चाहते हैं हाँ। वो प्रभु को अनुमति नहीं देते कि प्रभु ऐसा करे They उनके block द्वारा। their mind, they block their body, they block their spirit. अपने मन को वो बंद रखते हैं, अपने हाँ। आत्मा को बंद रखते हैं, अपने They are प्राण को not बंद on रखते हैं। time to the Lord. They are not have an appointment with God. They don't want to spend time with the Word of God. प्रभु के समय पर प्रभु के पास नहीं आते हैं, प्रभु के साथ अपना समय नहीं बिताना चाहते हैं और वचन के लिए भी अपना समय नहीं देना चाहते हैं। You know, I don't want to die in the stinking lake. लेकिन मैं वो बदबू आने वाले जो नदी है, जल है, Do you उसमें want- नहीं सड़ना चाहता Do you हूं। want to die in the stinking lake, or anybody desires to die in the stinking lake? ऐसा कोई व्यक्ति है जो मरना चाहता है वो उस बदबू आने वाले तालाब में या नदी में? Imagine it always says, give me more, the stinking. वो नदी, वो जो है वो बदबू जो आ रही है, सड़ा हुआ नदी कहता है मुझे और दे और दे और दे।
Some of us, we have an anointing हम में से कुछ लोग हैं जो हम पर अभिषेक है and we run for more anointing. और अभिषेक के लिए हम दौड़ते हैं यहाँ वहाँ। What you did with the anointing that is God has given you. जो अभिषेक प्रभु ने तुम्हें दिया, उस अभिषेक का तुमने क्या किया? Don't become a receiver of blessings, but become a channel of blessing. तो तुम एक केवल आशीषों को लेने वाले व्यक्ति मत बनो, लेकिन एक ऐसा जरिया बनो जहाँ पे तुम्हारे द्वारा आशीषें बहती हैं। Learn to give out, become a blessing. देने वाले बनो, एक आशीष का कारण बनो। I'm not talking about your finance. मैं तुम्हारे पैसों के विषय में बिल्कुल नहीं कह I'm रहा हूँ। talking about you giving yourself to God. मैं ये बता रहा हूँ कि तुमने अपने आप को प्रभु को देना है। You know what kind of fruits we need to bear for Jesus? तो यीशु के लिए हमने कैसे फल लाने हैं? Matthew 28:18 says there was no fruit. मत्ती का 28:18 कहता है कि कोई फल नहीं Now था। I want to tell you, according to Matthew 28:18, मत्ती का 28:18 के अनुसार when Jesus came to them and said, "All authority in heaven and earth has given to me." यीशु ने कहा कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। That means all power is with Jesus, यानी सारा सामर्थ यीशु के पास है। which means that the devil has no power at all. यानी शैतान के पास कोई सामर्थ नहीं है। Every authority and power is with Jesus Christ. यानी सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। Oh, what kind of authority? कैसा अधिकार? Authority over both heaven and earth. यानी सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर। Hallelujah. If you want to bear the fruit for Jesus, अगर तुम यीशु के लिए फल देना चाहते हो, I want to tell you two things this morning. आज सुबह 2 चीजें कहना चाहूंगा। Go out and teach all the nations, जाकर पूरे विश्व में सिखाओ, which means go out to the people and tell them about Jesus. यानी सब जातियों के लोगों को जाकर यीशु के बारे में बोलो। And the Bible says the Lord will be with you. और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु तुम्हारे साथ संग He रहेंगे। will be with you till the very end. जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहेंगे। Preach to somebody about my Lord and my Savior Jesus. मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता के बारे में, यीशु के बारे में किसी को तो प्रचार करके It could be बोलो। hard for some of you to talk about Jesus. कोई लोगों को यीशु के बारे में दूसरों को बताने में कठिनाई महसूस होती होगी। You can invite your friends to church and let them hear the gospel from the pulpit. और तुम्हारे दोस्तों को तुम कलीसिया में बुला सकते हो और वो वेदी से सुसमाचार सुन सकते हैं। Hallelujah. Gospel has to be preached. That's how you're going to bear the fruit. सुसमाचार हमें देना ही है, उसी रीति से हम फलवंत होंगे। Number 2. दूसरा मुद्दा, What about your treasures? तो तुम्हारा धन का तुम Your क्या talents, करोगे? तुम्हारे गुण, Your influences. तुम्हारे जितने भी प्रभाव These हैं, are the things we must give to Jesus. ये सारी चीजें हमें यीशु को देनी Use है। your influence for Jesus. तुम्हारे जितने भी इन्फ्लुएंस उसे यीशु के लिए Use your इस्तेमाल करो। finance for Jesus. तुम्हारे फाइनेंस यीशु के लिए यूज Use your करें। time for Jesus. तुम्हारा समय यीशु के लिए Use इस्तेमाल your करें। talent for Jesus Christ. तुम्हारे जितने भी टैलेंट्स, गुण हैं, वो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल Your कीजिए। influence, your finance, your time, your talent need to be used for the kingdom of God. तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारा समय, तुम्हारे जो गुण हैं और वो सारे यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करना Your जरूरी है। talent and money may be little, शायद तुम्हारे गुण और तुम्हारे पैसे बहुत थोड़े होंगे, but in God's hand, it can make a big difference. लेकिन जब प्रभु के हाथ में आता है वो बहुत ही कुछ अलग कर When सकते you हो उसके give द्वारा। little to God, जब तुम अपना थोड़ा प्रभु को देते He हो, knows how to multiply it. वो जानता है तुम्हें कैसे फलवंत That's होना what है। John chapter 15 verse 1 says. John 15:1 says, योना का 15:1 कहता I है, am true wine. मैं सच्चा दाख I लता हूँ, am the true wine. मैं ही सच्चा दाख लता And my हूँ Father is the gardener. और मेरा पिता माली है। Hallelujah. I want to talk to you this morning how to bear the fruit. आज सुबह को मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कैसे तुम फल ला सकते हो। 2 areas we must constantly bear fruit. 2 क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें लगातार फल लाना है। 2 areas we must constantly bear fruit. 2 क्षेत्रों में हमें लगातार फलवंत या फल देना जरूरी है। Jesus comes to the Sunday morning, tells you, and He wants to talk to you.
तो यीशु मसीह इतवार के सुबह आ रहे हैं और तुमसे बातें करना चाहते हैं। Jesus is here in our midst. यीशु मसीह हमारे मध्य में We हैं। read all power is given means, हमने देखा कि सारा सामर्थ मैंने तुम्हारा दिया है, उसका मतलब क्या listen, है? those who are fearful of witchcraft, those who are fearful about all the demonic powers, I want to tell you, all power is given to Jesus means devil has no power. देखो, जो जादू टोने से या तंत्र मंत्र से उरा डरते हैं, कतरबा। यीशु मसीह ने कहा सारी पृथ्वी और पृथ्वी का और स्वर्ग पर अधिकार मुझे दिया गया है, यानी शैतान को किसी भी चीज पर अधिकार Come नहीं on, है। this revelation knowledge open up in your spirit mind and be released like a rivers of the living water in देखो, Jesus' ये name. प्रकटीकरण तुम्हारे आत्मा में खोल दो और Oh. तुम्हारे अंदर वो एक जीवित सोता पानी के रूप में अंदर आने दो। All power is given unto me, Jesus said, means devil has no power. सारा अधिकार मुझे दिया गया, उसका मतलब है शैतान को कोई भी सामर्थ Those who नहीं are है। listening to me, listen, say with me, devil has no power. Jesus is all powerful. जो सुन रहे हैं मुझे मेरे साथ दोहराए कि शैतान को बिल्कुल कोई सामर्थ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह पूरे परिपूर्ण है सामर्थ में। All power is given to Jesus. सारा सामर्थ यीशु मसीह को दिया गया Power है। for your life. तुम्हारे जीवन के लिए जो सामर्थ तुम्हें चाहिए, Think about you're in the hands of Jesus. सोचो, विचार करो, तुम यीशु मसीह के The हाथों में हो power is in the hands of Jesus. और वो सामर्थ यीशु मसीह के हाथों में है। And see, you are a power man. You are a power woman of God. और तुम एक सामर्थी पुरुष हो और सामर्थी स्त्री हो परमेश्वर के। Hallelujah. Go out, teach all the nation means जाकर पूरे विश्व में सारे जातियों को ये सिखाओ का मतलब you है don't need the passport to fly. You can preach the gospel. तुम्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं है उड़ने के लिए, तुम सुसमाचार प्रचार कर सकते हो। John chapter 15, 1 and 2 says, you bear much fruit. योना का 15:1-2 कहता है कि तुम्हें बहुत फल लाना है। Hallelujah. This is the first part of Matthew, bearing the fruit. मत्ती का पहला भाग हमने सीखा भी कि हमें अधिक फल लाना Power है, of healing in giving. देने में चंगाई की शक्ति। Now when you read about Judges chapter 9, आई का 9वां अध्याय पढ़ते a हो, group of trees got together to talk about having a king. अभी एक कुछ झुंड झाड़ के कुछ झुंड जो है एक साथ में जुड़ गए, इस बात में वो बातें जो है वार्तालाप करने लगे कि हमें एक राजा की जरूरत A है। group of tree gathered and said, we need a king. तो कुछ ऐसे झुंड के लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे कि हमें एक राजा की जरूरत है। Why do you need a king? तुम्हें राजा की जरूरत क्यों है? Simply just like that. ऐसा ही Simply people listen to me. को जो कहते हैं ऐसे ही वो मेरी बात अभी सुनिए। ऐसे ही घूमना, इधर उधर घूमना. Listen to me. जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, अभी मेरी बात सुनो। Just for a change, we want a king. हमें अभी केवल ऐसा ही एक राजा चाहिए, कुछ हमें बदलाव चाहिए। Just for a change. बदलाव के लिए Leave everything and go. सब छोड़ के चला जा। They went to the olive tree first पहले वो ऑलिव ट्री के पास गए, and asked. जैतून के वृक्ष के पास गए They asked, और जैतून के वृक्ष से पूछा, olive tree, जैतून के वृक्ष, will you be our king? क्या तू हमारा राजा बनेगा? The olive tree replied, no. तो जैतून के वृक्ष ने कहा नहीं। You know why the olive tree said no? जानते हो जैतून के वृक्ष ने क्यों कहा? Olive tree said, जैतून के वृक्ष ने कहा, I am very valuable tree क्योंकि मैं बहुत ही मूल्यवान झाड़ हूँ, and should I give up my oil क्या मैं अपने तेल या चिकनाहट को छोड़ दूं, by which both gods and humans are honored to hold sway over the trees? जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं? Olive, will you be our king? जैतून के वृक्ष, क्या तू हम पर राज्य करेगा? Olive said, no, I won't be. तो उसने कहा कि नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा। Olive said, जैतून ने कहा, listen, सुनो, I am a productive, fruitful guy.
देखो मैं बहुत ही फलवंत हूँ व्यक्ति हूँ। I am the most valuable agricultural product in the world. देखो मैं सबसे मूल्यवान हूँ और मैं एक ऐसा पदार्थ हूँ जो बहुत ही मेरा दाम है या मूल्यवान है। मैं बहुत फलवंत फल देता I हूँ am used as a cooking oil. क्योंकि मुझे खाना पकाने के लिए तेल के रूप में I इस्तेमाल am करते used हैं for medicines. और दवाइयों के रूप में भी मुझे इस्तेमाल किया I जाता am है used for lubricants. और मैं लुब्रिकेंट्स के रूप में भी मैं इस्तेमाल किया I am जाता used हूँ as a fuels in the lamps. और तेल में कुम्पी डालने के लिए कुम्पी में भी मुझे तेल के रूप में इस्तेमाल करते I am हैं used as ingredients in perfumes. और सारे जो इत्र हैं उसमें भी एक उसके इंग्रेडिएंट्स के रूप में मुझे इस्तेमाल किया I जाता am है used in a sacred rituals. और मैं सारे जो पवित्र चीजें हैं उनके संस्कार में भी मुझे इस्तेमाल किया जाता है Like Pastor Manoj uses, God uses Pastor Manoj to pray for others. जैसे प्रभु पासवान मनोज को इस्तेमाल करते दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। Hallelujah. So you are the one. तो तुम वो व्यक्ति हो Like Pastor Manoj uses olive oil to pray over the people. जैसे पासवान जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं लोगों का अभिषेक करने के लिए। Hallelujah. Are you there? क्या आप See हैं? the answer of the olive tree. देखो ये जैतून का जो वृक्ष say- है देखो उसका उत्तर कैसा The है। olive oil is saying, the olive tree is saying, वो कहता है जैतून का वृक्ष कहता है how can I leave my productiveness and become your king? देखो मेरा उत्पादन को छोड़कर मैं तुम्हारा राजा कैसे बन सकता I हूँ। am not looking for a position but for a function. तो मैं कोई पोजीशन नहीं लेकिन मैं देख रहा हूँ हाँ। कि मैं कैसा मैं फल लाऊं। Pastor Manoj uses me to pray over the people. पासवान मनोज तुम्हें मुझे इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए प्रार्थना करने के I लिए। have my productiveness. हाँ मेरा खुद का एक उत्पादन है। Why I should leave and become a leader? मैं वो क्यों छोड़कर मैं एक अगुआ नेता बनूं। Now you should learn from the olive tree. तुम्हें ये ऑलिव के झाड़ से सीखना है। God has given the talents. God has given every kind of valuable things in you. प्रभु ने तुम्हें बहुत सारे गुण दिए, बहुत सारे मूल्यवान चीजें तुम्हारे अंदर डाली हैं। There is power of healing in giving. देखो देने में जो सामर्थ है, चंगाई का सामर्थ देने में चंगाई की शक्ति है। Hallelujah. And they were failed there. Olive trees rejected the leadership. अभी ये जैतून के वृक्ष ने वहीं पर Because अपने नेतृत्व को छोड़ The दिया olive tree is already productive. क्योंकि ये जो जैतून का जो वृक्ष है पहला से ही वो उत्पादन कर रहा है, वो And all फलवंत the है। other tree, all trees said, well, you don't know, बाकी के सारे वृक्ष ने कहा देख तू नहीं let's जानता, leave the olive tree now. अभी ये जैतून के वृक्ष को छोड़ देंगे, Let us go to the fig tree. चलो अंजीर के झाड़ के पास जाएंगे। And all these trees went to the fig tree asking, अभी ये सारे झाड़ जो है अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं, उन्हें पूछते हैं, hey fig tree, हे अंजीर के झाड़, can you be our king? क्या तू हमारा राजा बन सकता And the है? fig tree said to them, तो अंजीर के वृक्ष ने कहा उनसे, no. नहीं, Do you know I am used to bake cakes? क्या तुम जानते हो कि मुझे केक बनाने के लिए इस्तेमाल करते I हैं am used as a sweetener. और मुझे मीठापन के लिए इस्तेमाल करते I हैं। cannot stop feeding the hungry and become your king. तो मैं लोगों को खिलाने में नहीं रोक सकता हूँ और तुम्हारा खिलाना छोड़ के तुम्हारा राजा नहीं बन सकता हूँ। तुम्हें खिलाना छोड़ के लोगों को खिलाना छोड़ के मैं तुम पर राज्य नहीं कर सकता और राजा नहीं बन I सकता। cannot leave my productivity. यानी मैं जो उत्पादन कर रहा हूँ उसे मैं नहीं छोड़ सकता I हूँ cannot stop feeding the hungry and become your king. और भूखों को खिलाने का मैं छोड़कर तुम पर मैं राजा नहीं बन सकता हूँ। The problem here is the fig tree is saying, देखो समस्या ये है, अंजीर का वृक्ष कह रहा है, I have to leave my productivity मुझे if I want to become the king. अगर मुझे तुम्हारे ऊपर राजा बनना है तो मेरे जो उत्पादन में कर रहा हूँ उसे मुझे छोड़ना पड़ेगा। And the fig tree said, और वो अंजीर के वृक्ष ने कहा, I have to leave my productivity
मुझे मेरे उत्पादन को छोड़ना पड़ेगा। I am sorry, I am already a king. क्षमा करो, मैं तो पहले से ही राजा हूँ In my own rights, I have so many I serve. और मेरे खुद के जो अधिकार जो मैंने पाया उसमें मैं कितनी लोगों की सेवा कर रहा I हूँ, care for so many. मैं कितनों की चिंता करता हूँ। Don't put me in a position that destroys my function. तो मुझे एक ऐसे स्थान Come on. मत डालो जहाँ पे मेरा जो कार्य है वो नष्ट न हो I जाए। don't need a position by destroying my function. मुझे ऐसा पोजीशन नहीं चाहिए, जगह स्थान नहीं चाहिए जहाँ पर मेरा जो कार्य मुझे करना है उसे मैं छोड़ दूं। All the trees were discouraged. अभी सारे जो झाड़ है वो पूरी तरह से Now, डिस्करेज हो जाते all हैं। the trees talking together, what to do, what to do. अभी ये Simply, सारे झाड़ जो है एक दूसरे से बातें कर रहे, क्या करे क्या करे। these trees have no other works. ये इनको कुछ काम नहीं है। All the tree went to the wine grape. अभी ये सारे झाड़ अभी दाखलता के पास जाते हैं। Grape, 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 will you be our king? अंगूर से कहते हैं कि क्या तू हमारे लिए दाखलता, तुम राजा बन सकते हो Then the हमारे tree ऊपर। said to the wine, come and be our king. अभी ये सारे झाड़ जाकर ये दाखलता से कहते कि और हम पे आकर तू हम पर राज्य But the कर। wine answered, लेकिन दाखलता ने कहा no, नहीं, I cannot become your king. मैं तुम्हारे ऊपर राजा नहीं बन सकता हूँ। I am used everywhere. सब जगह पे मुझे इस्तेमाल किया जाता है। Right from the dining table डाइनिंग टेबल, खाने के मेज को पकड़ के to the shop shelf, और दुकानों पर my fruit is most required around the world. मेरा जो फल है वो पूरे विश्व में सब लोग चाहते हैं, वो बहुत ही उसकी जरूरत है। My goodness, they were all shaken. फिर सब लोग हिल गए, They were all shaken. वो सब हिल गए, They were all shaken. सब लोग हिल गए। You know, the wine said, दाखलता ने कहा I am being used everywhere. सब जगहों पर मुझे इस्तेमाल किया जाता है, Now I cannot be your king. मैं तुम्हारा राजा बिल्कुल नहीं बन सकता। Okay. Finally, the trees went to the bramble, and this particular bramble tree mentioned in the Bible as a thorn bush. और अंत में ये जो झाड़ है, सारे झाड़ जो मिलकर अभी वो झड़बेरी के पास जाते हैं जो कांटों की है। They just grow. Bramble tree, they just grow, but no fruit. अभी ये जो झाड़ है वो ऐसा ही बढ़ता है लेकिन उस पर कोई फल नहीं रहता है, ब्रैम्बल की झाड़। Even sheep and goat will be careful of this tree. देखो जो बकरे और भेड़ें। बकरा और भेड़ दोनों इस झाड़ से बहुत ही सावधान बरसते हैं। It is full of thorn bushes. क्योंकि वो पूरा जो है कांटों से भरा हुआ है, It does not have fruits. उस पे कोई फल नहीं रहता। The trees are coming and asking the bramble tree, can you be our king? और लोग आते हैं और इस झड़बेरी से झाड़ लोग आते हैं। सब झाड़ लोग जो है सारे झाड़ जो है ये झड़बेरी झाड़ के पास आते हैं और कहते हैं कि तू हम पर राज्य करेगा। You know what was the answer from the bramble tree? जानते हो कि ये तेजस्वी वृक्ष ने क्या कहा? It was ready to be the king. वो तैयार था राजा बनने This के लिए। bramble was the most useless, did not bear any fruit. That tree is ready to अभी become a ये king. झड़बेरी जो झाड़ है, कांटों का जो झाड़ है, वो किसी काम का Now listen. नहीं है। अभी वो तैयार है उन पर राज्य करने के लिए। People who have no desire to bear fruits are only interested in position, not in the function. देखो, जो लोग जिनके अंदर फल नहीं है वो केवल एक स्थान पाने का पोजीशन के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं करना चाहते They हैं। want to be only the king. वो केवल राजा बनना चाहते हैं। God is telling to you प्रभु तुमसे कह रहा है to be productive. कि तुम उत्पादक बनो। Don't फल run लाओ। after position, but learn to bear fruits. कोई भी पोजीशन के या स्थान के पीछे हाँ। मत भागो, लेकिन फल लाने वाले व्यक्ति Don't बन become जाओ। like a bramble tree, not interested in anything, but you want to become, they want to have position, not the function. लेकिन वो कांटों के झाड़ के समान मत बनो जो केवल कुछ फल नहीं देता है, लेकिन वो एक अपने लिए स्थान चाहता है। Olive tree is functioning. देखो ये जैतून ऑलिव का ट्री जो है वो फंक्शन दे रहा है, कार्य Oh, कर रहा fig है। tree is functioning.
और जैतून का वृक्ष फल दे रहा है, और ये फिग ट्री जो अंजीर का वृक्ष फल दे रहा है, and even the wine tree is giving the fruit, दाख bearing the लता का fruit. वृक्ष भी फल दे रहा है, But only the bramble tree is stagnant, not functioning, no fruit. लेकिन केवल ये जो ब्रैम्बल ट्री है, जो कांटों का झाड़ है, वो बिल्कुल फलवंत नहीं है। God is telling to be productivity. प्रभु कहता है कि उत्पादक बनो, Be productive. उत्पादक बनो, Don't run after positions, पोजीशन के पीछे but स्थान learn पाने to के लिए मत bear भागो, fruits for Jesus. लेकिन यीशु मसीह के लिए फल लाने के लिए दौड़ो। One day God will open your eyes, एक दिन प्रभु तुम्हारे आंखों को खोलेंगे, see the talents inside you. अपने अंदर जितने भी गुण डाले उसे देखो। The most useless only has the time to take the position. जो बिना काम के बेकार लोग हैं, वही हमेशा एक ऐसा स्थान पाना चाहते Sorry to हैं, use पोजीशन this के word. पीछे भागते Out हैं। of my experience, I'm talking to you. 30 years of experience. मेरे अनुभव के द्वारा मैं तुमसे बातें कर रहा हूं, 30 साल मेरे अनुभव रहे हैं। The most useless only has the time to take the position. They want to become a king. देखो, ये जो बेकार जो लोग हैं, जो इनको कोई भी काम कार्य नहीं करते हैं, ऐसे लोग पद के पीछे भागते रहते हैं। Bramble said, "Okay, come under my shade." देखो, ये जो कांटों का झाड़ ने क्या कहा कि आजा मेरे नीचे छाया ले ले। First of all, bramble tree doesn't have any shade. देखो, पहला तो ये कांटों का जो झाड़ है, उसमें कोई भी छाया नहीं रहती They है। have become own spiritual leaders. वो खुद के आत्मिक अगुवा बन They गए। have become, without experience, they have become preachers today. आज बिना कोई अनुभव के वो प्रचारक भी बन गए। Without experience, they have become under no shade. They have become open shade to others. और वो उनको खुद के को ले कोई छाया नहीं है, और दूसरों के लिए खुला छाया बन गए वो। When you are under the wrong leadership, which is not productive, देखो, जब तुम गलत नेतृत्व के नीचे आते हो, जो कोई उत्पादन नहीं कर रहा या फल नहीं ला रहा है, even your greater smartness has stooped to their poor thinking. Be careful. तो कि तुम्हारे अंदर कितने भी तुम शाणे बनते हो, तो उनके वो जो है चतुराई में तुम गिर चुके हो। Stop. It's a poor thinking. Be careful. बंद करो ये गलत सोच। Never allow wicked thinking to be under your leadership. देखो, तुम्हारे नेतृत्व के नीचे कभी भी कोई भी बुरा सोच विचार मत रखो। Don't come under the wicked leadership where there is no shade. ऐसे दुष्ट अगुवाओं के नीचे या नेतृत्व के नीचे मत आओ, जिनके ऊपर कोई भी छाया नहीं है, Because they will bow you down. क्योंकि वो तुम्हें झुका देंगे। Never allow wicked thinking to be under your leadership. देखो, तुम्हारे जो नेतृत्व के ऊपर कोई भी दुष्टता को राज्य करने मत दो, Because they will bow you down. क्योंकि वो तुम्हें नीचे गिरा देंगे, झुका देंगे। Never stop giving. Be productive. कभी भी फल देना बंद मत करो, उत्पादक रहो। Now, in final conclusion, I want to tell you, अंत करते हुए कहना चाहूंगा, if you have a life of giving, अगर तुम्हारा जीवन है देने का, you will have a healing process in your life. तो तुम्हारे जीवन में हमेशा चंगाई देते रहोगे, चंगाई पाते रहोगे। Don't be deceived in taking a position which is no fruit. तो बिल्कुल भरमाओ नहीं, धोखा मत खाओ कि ऐसा पद पाने के लिए जाओ जहाँ पे कोई फल नहीं Which है, is not fruitful. जो बिल्कुल फलवंत नहीं You know, you can't go near the bramble tree. It pokes you. देखो, ये झड़बरी जो है, जो कांटे का झाड़ है, उसके पास तुम नहीं जा You सकते, वो can't take the तुम्हें counsel. कांटा चुभेगा। You can't take the counsel from the bramble tree. देखो, ये जो कांटे का जो झाड़ है, उससे तुम सलाह मशवरा नहीं It ले सकते। doesn't, for itself doesn't have shade. Today many are like that. तो खुद वो उसके पास कोई छाया ही नहीं, तो वो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों की छाया के नीचे हैं। Don't be happy in the position as long as you are not able to produce. तो अगर तुम फल नहीं ला सकते तो बिल्कुल इस पद से खुश मत This रहो। morning the Holy Spirit is telling me to tell you, आज सुबह को पवित्र आत्मा कह रहे तुम्हें बताने के लिए, productivity is very important. फलदायक होना बहुत बहुत जरूरी है। Faithfulness is also fruitfulness. तो वफादारी का मतलब है फल लाना। And this morning I want to tell you before I end up this message. ये संदेश का अंत करने से पहले आज कहना This चाहता हूँ, is from the heart of God for you. तो ये प्रभु के हृदय से ये संदेश है तुम्हारे लिए। You know, you need to be hungry for Jesus.
यीशु के लिए तुम्हें भूखा होना है। Jesus came first time, he gave us the Holy Spirit. यीशु मसीह जब पहले बार आए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया। The second time he will not come to give you the Holy Spirit. दूसरी बार जब वो आएंगे पवित्र आत्मा नहीं Now देंगे। the season and the time of Jesus is to check what you did with that previous anointing. अभी वो ऐसा मौसम में हम हैं, ऋतु में हैं, जहाँ पे यीशु मसीह आएंगे जांचने के लिए जितने भी फल और गुण तुम्हें उन्होंने दिए gave उसका you- तुमने क्या किया। I gave you talents. मैंने तुझे गुण I दिए, gave you voice. मैंने आवाज दी, I gave you anointing मैंने तुझे अभिषेक to दिया lead worship. आराधना चलाने I के gave लिए, you anointing मैंने तुझे अभिषेक भी to किया sing for God. मेरे लिए प्रभु के लिए I गाने के gave you लिए, wisdom to handle the church items. और मैंने तुम्हें बुद्धि दी थी कि कलीसिया के चीजों को कैसे तुम्हें संभालना But है। what you did, God is coming and asking you this morning. आज सुबह प्रभु तुमसे आकर I want सवाल to पूछ tell- रहे हैं कि तुमने तो सारे गुण का क्या किया। Or you a bramble tree or you a fig tree. क्या तुम एक अंजीर के पेड़ हो, अंजीर का पेड़ हो, या वो कांटों का झाड़ हो। If you are a bramble tree, you are without shade. अगर तुम वो कांटों का झाड़ हो यानी तुम्हारे ऊपर कोई छाया You नहीं, are of no use. You are only seeking the positions. यानी तुम किसी काम के नहीं हो, केवल तुम एक पद को ढूंढ रहे हो, स्थान को ढूंढ But रहे हो। if you are a fig tree full of leaves and no fruit, there is no productivity. It is cursed by Lord अगर Jesus तुम Christ. कहते हो कि तुम अंजीर का पेड़ हो जिसमें पत्ते और कोई फल नहीं है, लेकिन यानी तुम श्रापित तो कोई काम के नहीं हो। Tonight, this morning, I want to tell you, आज की सुबह तुम्हें पूछना चाहता हूँ, Jesus' wide hand is opening and calling, my friend, यीशु के बाहें खुले हुए हो, हमें बुला रहे हैं। be like that olive tree, productive. लेकिन वो जैतून के वृक्ष के समान बनो जो फलदायक है, Be उत्पादक like है। that fig tree, productive. अंजीर के वृक्ष के समान बनो जो फल लाता है। Be like that wine tree, productive. वो दाखलता के वृक्ष के समान बनो जो फलवंत है। Don't go for positions, go for fruitfulness. कोई भी पद पाने के लिए मत जाओ, लेकिन फल देखने के बारे These में are the सोचो। seasons and the time to bear fruit, not to have positions in your lives. ये समय हमें फल लाने का है, अपने जीवन के लिए कोई पद ढूंढने का समय नहीं People है। are running for positions. For what? Like they are like a bramble tree. लोग यहाँ वहाँ भाग रहे अपने लिए एक स्थान या पद पाने के लिए, किसके लिए? लेकिन वो एक झाड़ जो कांटेली झाड़ के समान है। You know, they don't want to function what God has given. जो प्रभु ने उन्हें दिया उसका कार्य वो नहीं करना They चाहते don't हैं। want to work what God has given. प्रभु ने जो काम उन्हें सौंपा है उसका They are कार्य नहीं running to करेंगे। this man, that woman, but no use. You need to be productive. ये पुरुष, ये स्त्री, इसके पास उसके पास वो भागते हैं, This लेकिन man of God, पहले that तुम्हें man of फलवान God. बन, ये प्रभु का दास, वो प्रभु This का दास, apostle, that prophet. ये प्रेरित, ये नबी के पास What दौड़ते हैं। have you done with God has given you this salvation? जो उद्धार प्रभु ने तुम्हें दिया है, उस उद्धार का तुमने क्या किया My है? messages are not sugarcoating. देखो, मैं जो संदेश देता हूँ उसको कोई भी जो है मैंने शुगर It may नहीं डाला। not please you tonight, this morning. देखो, कोई शक्कर डालने वाले संदेश नहीं दे रहा हूँ। आज का संदेश तुम्हें बिल्कुल तुम खुश नहीं होगे उससे। I ask the Lord to bless me, Lord, to speak your word. मैंने प्रभु से मांगा कि प्रभु तू मुझे आशीष दे, मैं तेरे वचन को बोल Come सकूं। under the right leadership, morning. सही नेतृत्व के नीचे आ जाओ, Not for the position. अपने लिए कोई पद Come under पाने the के right लिए। leadership to bear the fruit for the kingdom of God. सही नेतृत्व के नीचे आ जाओ तो प्रभु को सही फल ला सकते हो Come तुम। under the Holy Spirit guidance. पवित्र आत्मा के अगुवा के नीचे आ When जाओ। Jesus comes to you, जब यीशु तुम्हारे पास आते you हैं, have the gifts, you have the talents, but no fruit. What will he do? वरदान तुम्हारे पास है, गुण और दिए हुए हैं, लेकिन जब यीशु मसीह तुम्हारे पास He आएंगे, will- तुमने उस वरदान और फलों का क्या किया? What happened to the fig tree? It's an example, it's a replica for the one who misuses the gifts of the Holy Spirit. वो अंजीर के पेड़ के साथ क्या हुआ, वही होगा जो प्रभु के वरदानों का गैर इस्तेमाल करते हैं। If you don't bear the fruit this morning, अगर तुम फलवंत नहीं होते हो, you know God is coming to take an accountability from you. तुम्हारे से प्रभु उन सारे चीजों का लेखा लेने वाले हैं। How can this Pastor Manoj can speak this? पास्टर मनोज ये बातें कैसे बोल सकते हैं? I am not a sugar coating preacher.
मैं ऐसा कोई शक्कर डालने कर बातें करने I वाला am not here प्रचारक to नहीं, compromise. किसी के साथ समझौता करने If I वाले के लिए speak, मैं I नहीं। speak the words of God. अगर मैं बोलूंगा तो मैं प्रभु की वाणी हूं मैं। No matter who you are, भले तुम जो कोई भी are हो, you bearing the fruit for God? क्या प्रभु के लिए तुम फलवंत हो Are रहे you हो? willing to bear much fruit for Jesus? क्या तुम तैयार हो यीशु के लिए बड़ा फल लाने के लिए? Are you ready to surrender your life completely to Jesus? क्या तुम तैयार हो अपने जीवन पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करने के Double lifestyle will go one day. लिए? दो चित्त जीवन जो है वो एक दिन निकल जाएगा। Double lifestyle will be exposed one day. ये दो चित्त जो जीवन है एक दिन खुलासा हो जाएगा। Power of God is coming to check out whether you're fruitful or not fruitful. प्रभु का सामत उतर आ रहा है तुम्हें जांचने के लिए, क्या तुम फलवंत हो या नहीं I हो। want to tell you this morning in Jesus' name. यीशु के नाम में आज सुबह कहना चाहता Don't हूँ, focus on the building, focus on how you're bearing the fruit. तो इमारत के ऊपर अपना ध्यान मत दो, अपने ऊपर जांचो अपने आप को, तुम कितने फलवंत हो। People have many timetables. बहुत लोगों का बहुत टाइम टेबल बनाया You हुआ have है। many timetables. तुमने अपने लिए खुद के खुद बहुत You टाइम don't टेबल have बनाया। even the timetable for God. In your timetable, you don't have time for God. तुम्हारे टाइम टेबल में तुमने बिल्कुल प्रभु के लिए कोई समय ही नहीं रखा है। Is God happy? क्या इससे प्रभु खुश है? Are you a bramble tree? क्या तुम एक झाड़ हो जो कांटेरी झाड़ हो? I'm talking to the nations of the world. मैं पूरे विश्व के जातियों से I'm बात not कर रहा only हूँ। talking to the few people here. मैं यहाँ पे कुछ थोड़े लोगों से नहीं I'm बोल रहा talking हूँ, to the entire body of Christ. मसीह के पूरे देह से मैं बोल रहा Or you a हूँ। bramble tree, or you a fig tree, or you a wine tree, or you a olive tree which bears the fruit. क्या तुम वो कटीले काट का झाड़ हो, या तो तुम जैतून के वृक्ष हो, या तुम अंजीर के पेड़ हो, या दाखलता के वृक्ष हो जो फल लाता है। Jesus is coming. यीशु मसीह शीघ्र आ रहे He is हैं। not delaying. He will come in 2048. Forget about it. Are you ready for today? यीशु मसीह आ रहे, ये नहीं कि 2048 में आने वाले हैं। क्या आज अगर यीशु मसीह आए, क्या तुम तैयार हो? What a foolish things you are preaching. क्या मूर्खता की बातें तुम प्रचार What कर रहे हो? foolish you are telling 2048. Jesus said, even I don't know when I will come. My Father alone क्या तुम knows. मूर्खता की प्रचार कर रहे हो कि यीशु मसीह 2048 में आएंगे, 48 में आएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि मैं भी नहीं जानता इस बात को, मेरे आगमन Is केवल it, पिता जानता is है। it from the Holy Spirit? क्या ये पवित्र आत्मा से के द्वारा है? No. नहीं, It is from the evil one. ये दुष्ट आत्मा Are की you ओर से। ready? One day a rich man gained everything, the Bible says. ये बाइबल कहता है कि एक दिन वो अमीर व्यक्ति ने सब कुछ पाया, He made riches. उसने बहुत धन कमाया, And that night the Lord appeared. और उस रात को प्रभु उसे प्रकट हुआ। You fool, तू मूर्ख, tonight if you die, what will happen to your property? आज रात को यदि तू मर जाएगा तो तेरे जमीन जायदाद You का क्या fool. होगा? तू मूर्ख। If you, he said in his heart, I will marry, I will enjoy उसने till अपने- 2048. उसने मन में सोचा कि 2048 तक जो है मैं आनंद करूंगा, बहुत ही एंजॉय You करूंगा। fool, ए मूर्ख, tonight if you die, अगर आज रात को तुम मर tonight if जाओ, your soul leaves your body, अगर आज रात को तेरा प्राण तेरे शरीर को छोड़ what दे, will you do with that? उससे तू तेरे क्या होगा, तुझे क्या लाभ होगा? That is the question from the Almighty God this morning to some of you who are talking about we have so many years to live. आज रात को परमेश्वर की आत्मा तुम्हें सवाल पूछ रहा है, जो लोग ऐसे कह रहे हमारे साथ बहुत सारे साल है यीशु के आने के लिए, जीने के You're लिए। not a follower of God's word. You're a follower of your thoughts. You have a human wisdom fallen mind. तो तुम परमेश्वर के विचारों के अनुसार नहीं चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे मनुष्य का जो सोच विचार है उसके अनुसार चल रहे। तुम्हारा जो सोच है वो गिरा हुआ सोच When है। a prophet speaks, he speaks. एक नबी जब बोलता है वो ऐसा बोलता When है। a prophet speaks, he corrects the body. जब एक नबी बोलता है वो मसीह के देह में सुधार लाता When है। an evangelist speaks, he speaks about salvation. जब एक सुसमाचारी बोलता है वो उद्धार का बारे में प्रचार करता When है। a pastor speaks, he says, don't go to the bramble tree. एक पासवान जब बोलता है वो कहता है वो कांटेरी झाड़ के पास मत When a जाओ। teacher teaches, he will refine you, he will refresh you, he will correct your lives. लेकिन जब उपदेशक प्रचार करता है वो तुम्हें सुधारता है, वो तुम्हें सही पटरी पर लाता है। When an apostle speaks, और जब एक प्रेरित बोलता है he will remind you who you are. वो तुम्हें याद दिलाता है तुम He कौन will हो। remind you about that fig tree when Jesus saw it was full of leaves.
वो and no अंजीर के fruit. पेड़ को तुम्हें याद दिलाता है जब यीशु मसीह ने वो अंजीर के पेड़ को देखा, पूरे पत्ते से भरे हुए लेकिन कोई फल Tell नहीं। you this morning, I am filled with the Holy Spirit. आज सुबह को तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं पवित्र आत्मा से My भरा heart हूँ। is crying for the people Mera- who are running and for the position like bramble tree without realizing their lamps have lost their oil. मेरा मन जो है पूरा रो रहा है अंदर से, ऐसे लोगों के लिए जो पद के पीछे दौड़ते हैं आजकल, लेकिन वो नहीं जानते कि उनके अंदर के जो दीपक है, उसका जो तेल है वो बुझ चुका है। Their lamps have lost the oil. उनके दीपक ने का तेल They खत्म हो चुका don't है। have the passion for Jesus. यीशु के लिए बिल्कुल जुनून नहीं They है। only want to have the functions. They want to have only the gatherings, not the passion to save the souls. देखो वो केवल पद के पीछे ढूंढते रहते हैं, वो आत्माओं को जीतने का उनको बिल्कुल कोई आत्माओं की चिंता Paul भी said, नहीं है। I boast in the cross of Jesus Christ. पौलुस कहता है कि मसीह के क्रूस पर मैं घमंड करता Whether हूं। I live or die, I live for मैं Jesus. जीऊं या मरूं, मैं मसीह के लिए जीता हूँ। Hallelujah. This morning I want to tell you, my heart is overburdened. आज रात को मैं सुबह को बोलना चाहता हूँ कि मेरा दिल पूरा जो है उमड़ रहा है, बहुत बोझ से भरा हुआ है। So many years you're in the Lord. इतने साल हो गए तुम्हें प्रभु में आकर, So many years you're in the Lord. इतने सारे साल How हो many गए years? तुम्हें प्रभु में आकर। I'm 10 years in the Lord. कुछ कहते हैं मैं 10 साल से I'm प्रभु में, 5 years in the मैं Lord. 5 साल हूँ प्रभु में। They say boasting 20 years in the कुछ लोग Lord. घमंड कहते करते करके कहते हैं मैं 20 साल से प्रभु में हूँ, So I am so, but where is the fruit? लेकिन वो फल कहाँ पर You are है? like that fig tree saying, boasting, I have full of leaves but no fruit. लेकिन तुम वो अंजीर के पेड़ के समान हो के जो कह रहे कि कितने सारे पत्ते मुझ पर है, लेकिन मेरे पास गुण है लेकिन कोई फल नहीं। Jesus is walking to you this morning. आज सुबह यीशु तुम्हारे पास चलकर आ रहे हैं He is hungry to have fellowship with you. और वो भूखे हैं, वो तुमसे संगति रखना चाहते हैं। God is very excited to meet you. तो प्रभु बहुत ही एक्साइटेड है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। But when जब वो देखते हैं, when he sees you, जब वो तुम्हें देखते when he हैं, come closer to you and sees you no fruit, जब प्रभु तुम्हारे करीब आते हैं और देखते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई फल नहीं है, what will be your state? तुम्हारा हालत क्या होगा? When you become a platform of giving, जब तुम देने वाले का मंच बनोगे, you don't attract curses. कोई श्राप के प्रति तुम्हारा आकर्षण नहीं होगा। Nothing else can touch your life. तुम्हारे जीवन को कोई भी बात छू नहीं सकती है। I'm telling you with my tears, मेरे आंसुओं के साथ कहता हूं मैं तुम्हें, be a platform of giving. देने वाले का एक मंच बनो, Be a productivity. उत्पादक बनो Be functional. और कार्यशील बनो। Don't become like that bramble tree or the fig tree which has plenty of leaves, no fruit. लेकिन वो कांटों का झाड़ मत बनो जिसपे कोई फल नहीं ना छाया है। God bless you. प्रभु तुम्हें आशीष दे।